संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मो स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। Namaskar, welcome you all to my YouTube channel Kalpurush Astrology. And as you know, in this channel we discuss how to make minimum 200 prediction from a bar chart, and our mool motto is to predict, only to predict, and we are taking two planets combinations first. दोस्तों, आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम एक ही बार चार्ट से मिनिमम 200 प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसी के लिए हम सबसे पहले ये दो प्लैनेट के कम्बिनेशन को लिए हैं, और आप जानते हैं कि हम ये जो वीडियो का सीरीज चल रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको कंप्लीट करने के लिए जितना भी टू प्लैनेट्स कम्बिनेशन होगा, मैं सबको रिक्वेस्ट भी ये करता हूँ कि आप जो नए हैं मेरे चैनल में, जो नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया पुराने वीडियो को भी देखें, क्योंकि मैं दो प्लैनेट्स कम्बिनेशंस अकॉर्डिंग टू नाड़ी एंड अकॉर्डिंग टू लाल किताब, टू प्लैनेट्स कंजंक्शन में क्या रिज़ल्ट आते हैं, क्या प्रेडिक्शन हम स्टर्निंग प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, किस प्रेडिक्शन से हम ये बोल सकते हैं श्योरली कि ऐसा तो होगा मिनिमम। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पुराने वीडियो सब देखें। आज का जो टॉपिक है वो है वीनस एंड केतु, एक्सट्रीमली सॉरी। वी शैल टुडे डिस्कस अबाउट केतु एंड वीनस कंजंक्शन बिकॉज वी हैव कवर्ड केतु एंड राहु। I have got your lots of phone calls and your messages. Thank you very very much for your kind love and cooperation. I have got your requests also. Surely, whatever you requested, I shall deliver within very few days. But today's topic, let's start. It's Venus and Ketu conjunction according to Nadi and according to Lal Kitab. So friends, let's start with Venus Ketu conjunction prediction results according to Nadi astrology. First, we consider according to Nadi astrology. Venus केतु कंजंक्शन में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इसको पद्मा योगा कहा जाता है। अगर वेनस एंड केतु बोथ जो जल तत्व राशि है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ये तीन राशि में अगर ये कंजंक्शन होते हैं, वेनस और राहु कंजंक्शन, तो अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इट इज़ ए पद्मा योगा, बिकॉज लोटस जो होते हैं, जो पद्मा जो होते हैं, वो है वीनस, और केतु जो है हम जानते हैं केतु रूट का कारक है, डीप रूट इज केतु। तो पद्मा जो है वो पानी के ऊपर बहते हैं, बहुत दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस टू सी द ब्यूटी of Padma floating over the river, but actual its is a base is deep under in the water or sea or river, so it's called Padma yoga. It's a very good yoga if it remains in Cancer, Scorpio and Pisces. Actually the meaning is Ketu is deep rooted knowledge. So when the native have this deep rooted knowledge of self realization, knowledge of Atma, knowledge of this universe, knowledge of, according to Hindu mythology, according to Hindu Shastra, if the native have sufficient knowledge from previous birth, then comes his conjunction Venus Ketu. So Ketu means deep rooted knowledge. It also might mean that the native has the knowledge of roots, that is he or she might be an Ayurvedic doctor if Venus Ketu conjunction is there, or if not doctor, but still the native will have very good knowledge of Ayurveda,
First result of this conjunction, that the native have plenty of money, very abundant family, but native is reluctant to luxuries. ये जो नेटिव है, ये इनके परिवार में धन संपत्ति बहुत होंगे, इनके पास भी बहुत होंगे, लेकिन इनको लग्जरी उतना अच्छा नहीं लगेगा, पसंद नहीं आएगा। लग्जरी के सिवा इनको ज़िंदगी में और कुछ अच्छा लगेगा, इनको ज़िंदगी में डिविनिटी अच्छा लगेगा। ये मंदिर में जाएंगे, ये साधु संग करेंगे, तो ये अलग किस्म का एक इंसान होंगे। लेकिन इनके घर परिवार में बहुत धन, इनके पास भी बहुत धन हो सकते हैं, लेकिन इनको वो धन नहीं चाहिए। इनको जो धन चाहिए वो है ईश्वर का धन। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वेरी गुड कंजंक्शन में से, इफ इट इज़ in a male or female chart. But definitely as you know, if you watched my previous videos, you will definitely come to know that the results will differ according to the position of these planets and according to their relation to other planets respectively. Because not only Venus and Ketu in the chart, there are 9 planets including Venus and Ketu. So rest 7 planets will also have their effects, and they will conjunct with Venus and Ketu in different way. They will affect the results of Venus and Ketu. So just we are now considering only 2 planets, but whenever you are predicting, you must have to keep in mind that other planets also play a very good role, or all planets are interlinked together, so that a result comes, and the character and the future and the past, present, future of the native is determined. So in the first point, we may say that the native will have plenty of money, but he or she is reluctant to luxuries. जो दूसरा पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि नेटिव के घर जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि नेटिव जो घर जो है, वो रास्ते में लास्ट जो घर है वो उनका घर होगा, या तो लास्ट से 3 घर पहले का जो घर है, थर्ड फ्रॉम द लास्ट, वो उनका होगा, या तो 3 मंजिला घर होगा, या अगर वो फ्लैट रहेंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, तो वो सेकेंड फ्लोर यानी 3 तला में वो रहेंगे। The native's house is the last of the lane, or third from the last, or the native stays in the second floor of the house. It's a real fact. If you find a person having Venus Ketu conjunction, as you know that Ketu is actually a lawyer, Ketu is a doctor. Few days ago I have the opportunity to visit a person, a famous lawyer of Kolkata, and when I was gone to his house, somebody says that just walk in this lane, you will find his house, and I knew that it might be the last house of the lane where the advocate remains. And surprisingly, and it's not surprise but it's amazingly, I can say that the last house is the house of the lawyer, and he stays in the second floor of the house also. So it's the beauty of the Nari astrology, beauty of the astrology, that we can predict what will be the house, what are the characteristics will be in the house, इनका घर कैसे होंगे, घर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, घर के आसपास कौन लोग रहेंगे, घर के सामने कौन रहेंगे, घर में कौन कौन हो सकते हैं, ये कहाँ पर रह सकते हैं, इनके घर के कलर कैसे हैं। दोस्त, अगर आप सही से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ेंगे तो ये सब आप बोल सकेंगे, ये गारंटी है। नंबर 3 जो पॉइंट है वो है कि फीमेल नेटिव एंड हर फैमिली स्पिरिचुअल। देखिए, केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी का कारक है, हम जानते हैं, और वीनस से हम फीमेल नेटिव को देखते हैं। तो फीमेल नेटिव जो होंगे वो बहुत स्पिरिचुअल होंगे,
और उनकी जो फैमिली होंगे जहाँ से वो आएंगे, फैमिली भी बहुत स्पिरिचुअल होंगे। ऐसा भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा है, मेरे गुरुजी आरजी राव जी ने इतना भी लिखे है कि उनके घर में कोई ऐसा धन हो सकता है, कोई ऐसा धन रह सकता है जो सभी को मालूम ही नहीं है कि घर के नीचे कुछ कोई धन दबा है और एक कोबरा वहाँ पर रह सकता है। देखिए इतना भी हो सकता है, लेकिन इतना दूर तो शहर में होना कठिन, लेकिन फिर भी उनके पास इतना धन रह सकता है जो उनको खुद को नहीं मालूम होगा। और फैमिलियल कोई ट्रेडिशन, फैमिलियल कोई पैसा, कोई धन, कोई जवाहरात उनके पास हो सकते हैं जो शायद मिट्टी के नीचे दबा हो। और लेकिन जो नेटिव होंगे वो बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे और उनके फैमिली जो है वो भी बहुत स्पिरिचुअल होंगे, इतना हम ज़रूर बोल सकते हैं। वीनस के तो कंजंक्शन में नंबर 4 में जो पॉइंट जो आप बोल सकते हैं गारंटेडली कि ये जातक को इनकम करने में, अर्निंग में ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे और इनका पैसा जो है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। देखिए वीनस के तो एक पैसा ब्लॉक का एक बहुत अच्छा कंजंक्शन है, जिनके भी ये अगर एक साथ भी नहीं रहेंगे, अगर वीनस के तो मान लीजिए कि 159 में है या सेम डायरेक्शनल साइन में है, जैसे 159 में हम बोले, या 2610 में है या 3711 में है या 4812 में है, तब भी ये होगा कि वो अगर किसी को पैसा देंगे तो वो वापस आने का चांसेस बहुत कम है। इसलिए वीनस केतु वालों को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि पैसा अटकना ये स्वाभाविक है। जिनके आप बहुत लोग देखे होंगे जिनको एटीएम से पैसा निकालते वक्त पैसा अटक जाता है, कहीं ना कहीं उनको भी वीनस केतु या वीनस जुपिटर, सॉरी केतु वीनस या केतु जुपिटर का कंजंक्शन है, तब वो पैसा अटक जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अर्निंग्स एंड मनी ब्लॉक्ड, ये हम वीनस केतु से देख सकते हैं। Number 5 point is that the person's desires are also suppressed. She or he cannot express his or her desire. She is always keeps quiet, speaks very little, reaction is very little also, and everything is within in her mind or his mind. ये वीनस केतु का कंजंक्शन का एक बहुत बड़ा निशानी है कि वो अपने जो बातें हैं, अपना जो इमोशंस है वो दबा के रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं। वो ऐसे लगेंगे कि इनडिफरेंट पर्सन है, इसको तो ना अच्छा में हंसी आती है ना खराब में रोते हैं, लेकिन वो इंसान ही ऐसे है जो डिज़ायर को थोड़ा छुपा के रखते हैं। वीनस के तो कंजंक्शन अगर किसी जिन नेटिव के होंगे, उनके जो डॉटर होंगे, जो बेटी होगी, उनकी भी लाइफ में हार्डल्स आएंगे। डॉटर विल हैव hurdles in her life because वीनस से हम डॉटर देखते हैं और केतु से हम हर्डल्स भी देखते हैं। तो वीनस केतु वालों का जो डॉटर होंगे उनको लाइफ में हर्डल्स आएंगे। फीमेल नेटिव हैव हेल्थ इश्यूज, ये बहुत एक अच्छा प्रेडिक्शन है। वीनस से हम फीमेल नेटिव को देखते हैं। कोई फीमेल नेटिव में अगर वीनस केतु कंजंक्शन है और केतु से हम सीजर्स का कारक हम केतु को देखते हैं, तो वीनस और केतु एक साथ होंगे तो उनके हेल्थ इश्यूज भी कुछ ना कुछ रहेंगे। हो सकता है बहुत दिन से वो छुपा हो, वो मतलब वो डायग्नोसिस से नहीं हुआ हो कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम उनके अंदर ही अंदर चल रहा है। ये वीनस केतु में ये आ सकता है। फीमेल नेटिव हैव डिजेक्शन इन मैरिड लाइफ। वीनस केतु वालों को जब कोई जातक विवाह करने के लिए सोचेंगे, शादी करने के लिए सोचेंगे, तो एक बार ध्यान से देख लेना कि वीनस केतु कंजंक्शन का इफेक्ट कितना ज़्यादा उनके ऊपर पड़ सकता है। क्योंकि अगर उनके पत्नी को वीनस केतु कंजंक्शन है तो वो मैरिड लाइफ में उनको अच्छा नहीं लगेगा, मैरिड लाइफ उनको पसंद नहीं आएगा। उनको पसंद आएगा कुछ और, डिवाइनिटी,
ईश्वर गॉड, लेकिन वो मैरिड लाइफ में वो थोड़ा इंडिफरेंट रहेंगे, तो इससे भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीनस केतु कंजंक्शन जितनी लड़की का है सबका मैरिड लाइफ खराब है, ऐसा एक्सट्रीम प्रेडिक्शन भी नहीं है, क्योंकि मैं बार बार जो बात बोलता हूँ कि इसके साथ और भी 7 प्लैनेट्स हैं जिनका भी प्रेडिक्शन, जिनका भी इफ़ेक्ट इन दोनों के ऊपर आएगा, और ये रिजल्टेंट जो है वही रिज़ल्ट इंसान के ज़िंदगी में मिलता है। तो दोस्तों ये था वीनस केतु अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू लाल किताब। लेट्स टॉक अबाउट वीनस केतु कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू लाल किताब। In Lal Kitab we know that Venus, Ketu or any other planet's conjunction, individual effects always comes. Here Venus in Lal Kitab is good in first house, 6th house, 9th house is bad, and good is 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th, 8th, 10th, 11th and 12th houses. Ketu is good in 2nd house, 1st house, 2nd house, 7th house, 9th house, 10th house, 11th house and 12th house. Ketu usually bad in 3rd, 4th, 5th, 6th and 8th house. So individual effect, whenever they are conjunct in any house, individual effect will come. But good and bad, these are most, I can say these are most relative words in Lal Kitab. Because a planet is good, suppose house number 1, but in its pakka ghar, in its own house, in its house of signification, if enemy planet is seated, is posited, or if the enemy planet is aspecting anyhow, or if it's in takkar, then the good effect of the planet usually damaged. This is the funda of Lal Kitab. So here Ketu is good in such and such houses, bad in such and such houses. Venus in good few, in maximum houses, just 3 houses Venus is bad. But still their result may come good or bad according to their individual situation of the chart. फॉर दैट रीज़न केतु वेनस कंजंक्शन में लाल किताब में बोलते हैं कि इंडिविजुअल इफेक्ट आएंगे। हाउस नंबर 1 से हाउस नंबर 5 तक इंडिविजुअल कंप्लीटली आएंगे, 7, 8, 10, 11 में भी आएंगे। हाउस नंबर 6 में वेनस और केतु ये दोनों सबसे खराब रिजल्ट देते हैं, क्योंकि दोनों ही हाउस नंबर 6 में वर्स्ट परफॉर्मेंस करते हैं। वेनस डेबिलिटेटेड है और केतु कोलॉर्ड है हाउस नंबर 6 का with Mercury, but Ketu also gives very worst result in house number 6. In house number 9, Venus house number 9 में अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर Venus केतु के साथ है, स्पेशल रूल है लाल किताब का, तो वो अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इन हाउस नंबर 12, जहाँ पर हाउस नंबर 12 में आप जानते हैं कि Venus यहाँ पर एक्साल्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइफ बोल्ड होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है लाल किताब में कि अगर हाउस नंबर 12 में वीनस केतु का कंजंक्शन हो तो मेल चाइल्ड ज़्यादा होंगे। रेमेडी क्या होगा, खास करके जब हाउस नंबर 6 में वीनस केतु कंजंक्ट हो तो तब जुपिटर का रेमेडी लाल किताब का मानना है कि तब जुपिटर का रेमेडी आपको करना है। और जुपिटर 6th हाउस का रेमेडी हम जानते हैं कि जुपिटर 6th हाउस में बाएं हाथ में छोटे उंगली जो होते हैं, लिटिल फिंगर, वहाँ पर एक गोल्ड रिंग आप पहन सकते हैं। तो ये था लाल किताब में राहु और केतु और वीनस का कंजंक्शन का इफेक्ट्स और उसके रेमेडी। तो दोस्तों हमने देखा कि वीनस और केतु का कंजंक्शन में नाड़ी और लाल किताब में क्या कंजंक्ट का रिजल्ट आते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। नेक्स्ट कोई कंजंक्शन को लेके बहुत जल्द हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए विदाई दीजिए। नमस्ते, जय राम कृष्ण।